Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, I am praying that these messages have been used by God to bless your life. मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इन संदेशों का प्रयोग आपके जीवनों को आशीषित करने के लिए कर रहा हो। If you have been listening to us systematically, you know that we are in the midst of a series of messages on conquering fear. यदि आप योजनाबद्ध रीति से हमें सुनते आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम भय पर विजय के विषय में संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। And we left you the last time hanging in mid-air, as it were. और पिछली बार हमने आपको बीच हवा में लटकते छोड़ा था, जैसे कि यह था। I told you to tune in to this broadcast to hear the rest of the story of how God dealt with Peter's hidden fears. मैंने आपसे इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए कहा था ताकि आप उस कहानी का शेष भाग सुन सकें कि कैसे परमेश्वर पतरस के छिपे हुए डरों के साथ निपटा। When Jesus walked on the water to get to the disciples, जब चेलों तक पहुंचने के लिए यीशु पानी पर चलकर आ रहा था, they became more frightened when they saw him. तो उसे देखकर वो और भी भयभीत हो गए। So the first thing he did was to tell them not to be afraid. तो पहला काम उसने ये किया कि उनसे कहा कि डरो मत। Peter, who at least had more of an initiative than the others, said to Jesus, पतरस, जिसमें कम से कम दूसरों से अधिक पहल थी, उसने यीशु से कहा, Lord, if that is you, bid me to walk on the water. प्रभु, यदि ये तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। There are many people who belittle and despise Peter in this passage. अब बहुत सारे लोग इस भाग में पतरस को तुच्छ और तिरस्कारित करते हैं। I do not do that. मैं ऐसा नहीं करता। I give Peter his due. मैं पतरस को उसका हक देता हूँ। While the others sat back and did nothing, he got up and tried to walk on the water. जबकि बाकी शिष्य बैठे रहे और कुछ नहीं किया, वो उठा और पानी पर चलने का प्रयत्न किया। Please listen to me very carefully. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए। At the point of your courage and strength, आपके साहस और शक्ति के केंद्र पर God wants you to confront your fears. परमेश्वर चाहता है कि वहां आप अपने डरों का सामना करें। And Jesus commanded Peter to come. और यीशु ने पतरस को आने की आज्ञा दे दी। And he got up out of the boat and began to take some steps. और वो नाव में से उठा और कुछ कदम उठाने शुरू किए। Matthew 14:30 says, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 30 पद कहता है, Then he saw the wind and he was afraid. फिर वो हवा को देखकर डर गया। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। Many people say, oh, Peter took his eyes off the Lord. बहुत सारे लोग कहते हैं, ओ पतरस ने प्रभु पर से आंखें हटा ली थी। But the real key word here is wind. परंतु यहाँ असल केंद्रीय शब्द है हवा। Why was Peter afraid of the wind? पतरस हवा से क्यों डरा? He was walking on water. वो पानी पर चल रहा था। He should have been afraid of water. उसे तो पानी से डरना चाहिए था। The wind was not going to drown him. हवा उसे नहीं डुबाने वाली थी। The water was going to drown him. पानी उसे डुबाने वाला था। But he wasn't afraid of the water. परंतु वो पानी से नहीं डरा। He was afraid of the wind. उससे हवा से डर लगा। Under normal conditions, he should have been afraid of the water and the waves. सामान्य परिस्थितियों में उसे पानी और लहरों से डर लगना चाहिए था। Please don't miss this point I'm going to tell you. कृपया इस विचार से मत चूकिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। The characteristic of the person who drives his or her fears underground is something like this. जो व्यक्ति अपने डरों को अंदर ही अंदर धकेलता रहता है या रखती है, उसके गुण कुछ इस प्रकार के होते हैं। They strike out on great enterprise. वो कठिन कार्य में हाथ डालते हैं। They come up with profound statements. वो गहरे विचार प्रस्तुत करते हैं। They probably take some strong stand. वो शायद कुछ दृढ़ निश्चय भी लेते हैं। They could walk on water. वो पानी पर चल सकते हैं। But they get tripped by trivialities. परंतु वो ओछेपन के कारण ठोकर खा जाते हैं। Why? क्यों? Because they are living in denial of their fears. क्योंकि वो अपने डरों के इनकार में जीते हैं। Peter, who was out of touch with his own fears, needed to confront his fears. पतरस, जो अपने खुद के डरों के संपर्क से बाहर था, उसे अपने डरों का सामना करने की जरूरत थी। Not gloss over it. न कि इन पर सफाई देने की। Jesus was not going to let him get away without dealing with it and facing it. यीशु उसे इनका सामना किए बिना और इनसे निपटे बिना छोड़ने वाला नहीं था। How many people are like Peter? कितने लोग पतरस के समान हैं? They have great initiative, उनमें अच्छी पहल है, great intentions, अच्छे उद्देश्य हैं, begin well and good, बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं, but then they get tripped up by some trivialities. परंतु फिर ओछेपन के कारण वे ठोकर खा जाते हैं। Why? क्यों? Because they never confront their fears. क्योंकि वे कभी अपने डरों का सामना नहीं करते। And often the consequences are that they stop halfway. अब अक्सर परिणाम ये होते हैं कि वो बीच रास्ते में ही अटक जाते हैं। They never succeed at anything. वो किसी कार्य में सफल नहीं होते।
They never reach their goals. वो कभी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते। They always settle for second best. वो हमेशा दूसरे दर्जे की वस्तु पर सहमत हो जाते हैं। They program themselves for failure. वो अपने आप को असफलता के लिए तैयार करते हैं। As a consequence of this characteristic, इसी गुण के परिणाम स्वरूप Peter feared the wind, not the water, पतरस हवा से डरा न कि पानी से, and began to sink. और डूबने लगा। Jesus reached over to him and pulled him up. यीशु आगे बढ़ा और उसे ऊपर खींच लिया। But then he let him confront his fears by saying, परंतु फिर उसने ये कहकर उसे उसके डरों का सामना करने दिया, "You man of little faith, हे अल्पविश्वासी, why did you doubt?" तूने संदेह क्यों किया? Jesus confronted Peter as an individual. यीशु ने पतरस को व्यक्तिगत रूप में पकड़ा। There was a total disappointment, but that was part of the lesson. वहां बिल्कुल निराशा थी, परंतु ये उस सबक का एक हिस्सा था। Sometimes I imagine Peter was probably saying to himself, कई बार मैं सोचता हूं कि शायद पतरस अपने आप से कह रहा होगा, "Oh, I am not as brave and courageous as I'm trying to appear to be. ओ मैं इतना बहादुर और साहसी नहीं हूं जितना मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। Fear is entrenched deep within me that I am refusing to acknowledge it. भय मेरे अंदर इतना गहरा बसा हुआ है कि मैं इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहा हूं। Please listen to me very carefully because I want to tell you something very important. कृपया बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। I have learned and continue to learn मैंने सीखा है और लगातार सीख रहा हूं that it is only when I am weak that God is strong. कि परमेश्वर केवल तभी सामर्थी है जब मैं निर्बल हूं। If I declare that I am strong in this area or that area, यदि मैं ये दिखाऊं कि मैं इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में मजबूत हूं, that is the area I'm going to get tempted in. तो यही क्षेत्र है जहां मुझे परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। But when I acknowledge my weaknesses, परंतु जब मैं अपनी कमजोरियों को मान लेता हूं, I'm inviting my Heavenly Father to strengthen me on all fronts. तो मैं अपने स्वर्गीय पिता को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हर क्षेत्र में मुझे सामर्थ्य बनाए। Any strength that I have is not mine. मेरे पास जो भी सामर्थ है वो मेरी नहीं है, It is God's strength. ये परमेश्वर की सामर्थ है, For I have no strength whatsoever. क्योंकि मुझ में किसी प्रकार की कोई सामर्थ नहीं है। In confronting his fears, Peter had to go through much more devastating experiences than the water and the wind. अपने डरों का सामना करने में पतरस को पानी और हवा से भी कहीं अधिक तोड़ देने वाले अनुभवों में से गुजरना पड़ा, So that he can be awakened to face his false confidence. ताकि वो अपने झूठे आत्मविश्वास का सामना करने के लिए जाग सके। I am sure he wished he never had to go through these experiences. मुझे यकीन है उसने चाहा होगा कि काश उसे इन अनुभवों में से न गुजरना पड़ता। It took a crushing experience for Peter to become aware of the depth of his deficiency in faith. पतरस को अपने विश्वास की कमी से परिचित होने में एक बहुत ही कठिन अनुभव में से निकलना पड़ा। Let's look at that experience. आइए उस अनुभव को देखें। At the eve of the crucifixion, क्रूस के एक दिन पहले की शाम Peter was boasting about how he would follow his master even to death. पतरस ये कहते हुए फूल रहा था कि कैसे वो मृत्यु तक भी अपने स्वामी के साथ रहेगा। Oh, he boasted and he talked big. उसने घमंड के साथ बड़ी बड़ी बातें कही। Sure, he had learnt one lesson on the water, निश्चय ही पानी में वो एक सबक सीख चुका था, but he did not learn the full lesson yet. परंतु अभी उसने पूरा सबक नहीं सीखा था। Jesus tried to talk to him, but he was not listening. यीशु ने उससे बात करने की कोशिश की, परंतु वो सुन नहीं रहा था। Have you known people like that? क्या आप ऐसे लोगों से परिचित रहे हैं? You talk to them and you talk to them and you talk to them, but you know they're not listening. आप उनसे बात करते हैं, करते रहते हैं और करते रहते हैं, परंतु आपको पता है कि वो सुन नहीं रहे हैं। Jesus tried to tell him that he would actually deny him 3 times. यीशु उसको ये बताने का प्रयत्न कर रहा था कि वास्तव में वो 3 बार उसका इनकार करने वाला है, But Peter was not listening. परंतु पतरस नहीं सुन रहा था। He had to confront his fears in a painful way. उससे बहुत पीड़ादायक तरीके से अपने डरों का सामना करना पड़ा। Jesus took the disciples from the upper room through the valley of Kidron to the Garden of Gethsemane. यीशु अपने शिष्यों को ऊपरी कोठरी से किद्रोन की घाटी से होते हुए गतसमनी बाग में ले गया। There Jesus told them to watch and pray so that they would not fall into temptation. वहां यीशु ने उनसे जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा ताकि वो परीक्षा में ना पड़े। What do you think the greatest temptation was at that time? आप क्या सोचते हैं उस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी? Was it stealing? क्या ये परीक्षा चोरी थी? No. नहीं। Was it killing? क्या ये परीक्षा हत्या थी? No. नहीं। The temptation was fear. परीक्षा थी भय।
But Peter had not come to that point of admission yet. परंतु पतरस अभी स्वीकृति के उस बिंदु पर नहीं आया था। Fear was far from his mind. भय उसके दिमाग से कहीं दूर था। So he and the others went to sleep. तो वो और बाकी शिष्य सो गए। Therefore, Peter entered into the events of Good Friday totally unprepared. इसलिए पतरस ने गुड फ्राइडे की घटनाओं में बिल्कुल बिना तैयारी प्रवेश किया। There are so many of us who refuse to be spiritually prepared for temptation. हम में से बहुत ऐसे हैं जो परीक्षा का सामना करने के लिए आत्मिक रूप से तैयार होना नहीं चाहते। Peter was brave and daring to enter into the very courtyard of his enemy where his master stood trial. पतरस इतना बहादुर और साहसी था कि वो अपने शत्रु के आंगन में जहां उसके स्वामी का मुकदमा चल रहा था अंदर तक चला गया। But he wasn't brave enough to see it through. परंतु वो इतना बहादुर नहीं था कि वो इस पूरी घटना को देख पाता। Why? क्यों? Because human bravery is elementary at best. क्योंकि इंसानी बहादुरी अपनी शुरुआत में ही सबसे उत्तम होती है। Human bravery will take you the first step and maybe the second step, but that's where it leaves you. इंसानी बहादुरी आपको एक कदम ले जाएगी या हो सकता है 2 कदम, परंतु फिर बिल्कुल वहीं ये आपसे अलग हो जाती है। Peter's hidden fears took over. पतरस के छिपे हुए भय उस पर प्रबल हो गए। And halfway through, he stumbled. और आधे रास्ते जाकर फिर वो ठोकर खा गया। Refusing to acknowledge your fear will cause you to buckle under trivialities. अपने डरों को स्वीकार करने से इनकार करना कठिनाइयों के दौरान आपको जकड़ देगा। Notice in the situation with Peter here. यहाँ पतरस की स्थिति पर ध्यान दीजिए। It wasn't the threat of the vicious high priest. ये उस दुष्ट महायाजक का डर नहीं था। It wasn't the sword of the Roman soldiers that tripped Peter. ये किसी रोमन सैनिक की तलवार नहीं थी जिससे कि पतरस लड़खड़ाया। But it was the lowly slave girl that caused him to stumble. ये एक तुच्छ गुलाम लड़की थी जो उसकी ठोकर का कारण बनी। Just like it wasn't the water and the waves that finally undid Peter, but the wind. बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ समय पहले पतरस को पानी और लहरों ने धाराशायी नहीं किया था, परंतु हवा ने किया। The same way here, the little pink tongue of the little slave girl unleashed a force of fear of hurricane proportion. उसी प्रकार से यहाँ एक छोटी सी गुलाम लड़की की छोटी सी गुलाबी जीभ ने तूफान के एक अंश के भय की ताकत को प्रकट कर दिया। That little tongue brought a total force that was greater than the storm and the wind. वो छोटी सी जीभ एक इतनी बड़ी शक्ति को ले आई जो आंधी और तूफान से कहीं बड़ी थी। And it caused Peter to cave in. और इसने पतरस को छिपने के लिए मजबूर कर दिया। So he cursed and swore to affirm his total denial or any knowledge of his beloved master. तो जिसे वो अपना प्रिय स्वामी कहता था, उसे किसी भी तरह से जानने या पहचानने से इनकार करते हुए उसने कसमें खाई और श्राप दिए। Not once, एक बार नहीं, not twice, 2 बार नहीं, but 3 times. बल्कि 3 बार। Read Matthew 26, पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय verses 69 to 75. 69 से 75 पद। But I don't want to dwell there. परंतु मैं वहीं पर नहीं रुकना चाहता। I want to go on to say, thank God that Peter was not a total failure. मैं आगे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर शुक्र है कि पतरस पूर्ण रूप से एक असफलता नहीं था। Because he came to the point in his life after the resurrection when he realized that there is victory in Jesus. क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान के बाद पतरस अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर आया जहां उसने ये जाना कि यीशु में विजय है। There is victory in confronting your fears. अपने डरों का सामना करने में विजय है। There is victory in confessing your fears. अपने डरों को स्वीकार करने में विजय है। There is victory in repentance. पश्चाताप में विजय है। There is victory in cleansing. शुद्धिकरण में विजय है। And there is victory in restoration. और बहाली में विजय है। With this crushing defeat, Peter had to identify and confront his fears. इस चूर चूर कर देने वाली पराजय के बाद पतरस को अपने डरों को पहचान कर उनका सामना करना पड़ा। And that is why you see Peter in the book of Acts as a different Peter. और इसी कारण प्रेरितों के काम की पुस्तक में आप पतरस को एक अलग पतरस के रूप में देखते हैं। Later on, after the resurrection, in John 21, 1 to 19, बाद में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 1 से 19 पदों में पुनरुत्थान के बाद Jesus was preparing food for them on the beach. यीशु समुद्र के किनारे उनके लिए भोजन तैयार कर रहा था। He singled out Peter, उसने पतरस को अलग किया, just as he singled out Thomas in the upper room. बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपरी कोठरी में उसने थोमा को अलग किया था। And on the beach, Jesus confronted Peter and said to him,
और समुद्र के किनारे यीशु ने पतरस के सामने आकर उससे कहा, Peter, do you love me more than these? पतरस, क्या तू मुझे इनसे अधिक प्यार करता है? There is a debate on what the word these means. अब इनसे इस शब्द पर एक विवाद है. Does it refer to the disciples or refer to the nets and the fishes and the boats? क्या ये बाकी शिष्यों की ओर संकेत था या नाव में पड़ी मछलियों और जालों की ओर संकेत था? But it really doesn't matter, does it? परंतु खैर असल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ता है. Do you love me more than anything else? क्या तू मुझे किसी भी और चीज से अधिक प्यार करता है? Do you love me more than anybody else? क्या तू मुझे किसी भी और व्यक्ति से अधिक प्यार करता है? Do you love me more than anything else in life? क्या तू जीवन में मुझे किसी भी और वस्तु से अधिक प्यार करता है? Do you really love me, Peter, more than your money? पतरस, क्या तू वास्तव में मुझे अपने पैसे से अधिक प्यार करता है? Do you love me, Peter, more than who you are? पतरस, क्या तू मुझे अपने खुद के व्यक्तित्व से अधिक प्यार करता है? Do you love me, Peter, more than your possessions? पतरस, क्या तू मुझे अपनी धन संपत्ति से अधिक प्यार करता Do है? you love me, Peter, more than your titles? पतरस, क्या तू मुझे अपनी पदवियों से अधिक प्यार करता है? And I hear the Lord to be asking us the same questions. और मैं प्रभु को हम सब से भी बिल्कुल यही प्रश्न करते हुए सुन रहा हूँ. Do you love me more than these? क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्यार करते हो? Ultimately, Peter put his head down and he said, Lord, you know everything. अंततः पतरस ने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रभु तू सब जानता है. You see, his fears now were out in the open for all to see. आप देखेंगे कि अब उसके डरों को सब स्पष्ट देख सकते थे. That mask that had been covering up his hidden fears, whether it was conscious or unconscious, fell down. वो मुखौटा जो उसके डरों को अब तक छिपाता आ रहा था, चाहे ये विवेकी था या विवेकहीन, अब गिर चुका था. After that happened, he could say in Acts 2:36, इस घटना के बाद प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय के 36 पद में पतरस कह सका, Let all Israel be assured of this. सारा इस्राएल ये जान ले, God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. वो यीशु जिसको तुमने क्रूस चढ़ाकर मार डाला, परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह ठहराया. Let me get personal with you as I bring this message to conclusion. इस संदेश को समाप्त करते हुए मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ. You may be denying your fears. शायद आप अपने डरों से इनकार कर रहे हों. You may be trying to project a false image. शायद आप एक झूठा रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हों. You may be pretending to be someone that you're not. शायद आप खुद को ऐसा पेश कर रहे हो जो आप असल में नहीं है. You can do one of three things, आप इन तीनों में से एक काम कर सकते हैं, but only one will ensure victory. परंतु केवल एक ही आपकी विजय सुनिश्चित करेगा. Well, you can continue to repress your fears. या फिर आप लगातार अपने डरों को दबाना जारी रख सकते हैं. You can continue to transfer your fears, blaming their causes on this or that or the other thing. आप अपने डरों को लगातार अदल बदल करते रह सकते हैं, इनके दोष कभी इस बात पर या कभी उस बात पर या किसी और बात पर लगाते हुए. Or you can confront your fears, confess them, and let Jesus give you the victory. या फिर आप अपने डरों का सामना करते हुए इनका इनकार कर सकते हैं और यीशु को अनुमति दे सकते हैं कि वो आपको इन पर विजय दे दे. Let us do this as we pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करते हुए ऐसा करते हैं. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we acknowledge our weakness. हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं. We acknowledge our fears. हम अपने डरों को स्वीकार करते हैं. We ask you to take our fears and replace it with faith. हम आपसे मांगते हैं कि आप हमारे डर लेकर इन्हें विश्वास के साथ बदल दीजिए, That we may boldly proclaim the message of Jesus Christ ताकि हम निर्भीक होकर यीशु मसीह का संदेश सुना सकें, without fear, बिना डर, with courage, साहस के साथ and with love. और प्यार के साथ. In His name I pray. उसके नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. आमीन.